ملک بھر میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا. فیصل آباد میں گیس کے بحران کے بعد لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. شہری حکومت کے خلاف تل ملا اٹھے. خانیوال میں پاکستان ریلوے پریم یونین کے عہدیدار سراپا احتجاج. سی بی اے کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں ریل کا پہیہ جام کرنے کا عندیہ. پیرپور آزاد کشمیر اسکول ٹیچرز آرگنائزیشن کی ہڑتال. اساتذہ نے 27 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں ڈیوٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اساتذہ کا اسکیل اپ گریڈیشن اور محکمہ پروموشن کا مطالبہ. کرک میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بنیادی سہولیات کا فقدان. ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث 3 ماہ سے آپریشن تھیٹر بند. مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے. سیلاب کو گزرے 3 ماہ ہو گئے. گھر سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی. متاثرہ علاقوں سے تاحال پانی کی نکاسی کا عمل ممکن نہ بنایا جا سکا. متاثرین سرد موسم میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. اور سردی کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئیں. ملک بھر پہ خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ. شہری قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث شکوہ کرنے لگے. آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں اور میں ہوں ویس اقبال. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں گیس کے بحران کے بعد لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. شہری مہنگی لکڑیاں خرید کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں. شہری حکومت کے خلاف تل ملا اٹھے ہیں. مزید بتائیں گے شوکت بٹو اپنی اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی. گیس کے متبادل ذرائع بھی مہنگے ہو گئے. مارکیٹ میں لکڑی کوئلے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. مہنگائی کے ستائے شہری 120 روپے فی کلو کوئلہ اور 1400 روپے فی من لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں. گورنمنٹ نے اپیل ہے کہ گیس ٹائم پوری فل یعنی ہونی چاہیے. اس تو علاوہ اسی جو لکڑی لینے ہیں جو کوئلہ وغیرہ لینے ہیں وہ سانو بہت مہنگا لینا پہنتا وا. کوئی چیز لینے جائے وہ مہنگی ہے. لکڑی لینے جائے 500 تھی اب 800 روپے ہے. لکڑی اور کوئلے کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے قیمتوں میں اضافہ خود ساختہ نہیں. گھریلو کھپت زیادہ اور سٹاک کم ہونے کی وجہ سے خشک لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. حکومت کی طرف سے یعنی کہ جب یہ گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے دونوں یعنی کہ سیزن میں اپنا اپنا ریٹ ہوتا ہے ان کا. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے گیس لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے دعووں کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین وقار احمد کے ساتھ شوکت بٹو، نیو، فیصل آباد. ادھر خانیوال میں پاکستان ریلوے پریم یونین کے عہدیدار سراپا احتجاج بن گئے. سی بی اے کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا مطالبات منظور ہونے تک ریل کا پہیہ جام کرنے کا عندیہ. طارق شہزاد کی رپورٹ. خانیوال میں پاکستان ریلوے پریم یونین کے عہدیداران سراپا احتجاج. سی بی اے کی جانب سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث گھروں میں نوبت فاقوں تک آ گئی ہے. راشن لینے سے مجبور ہیں, فاقہ کشی پہ آ چکے ہیں اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ریلوے انتظامیہ کیوں تنخواہیں لیٹ کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ سے, خواجہ سعد رفیق سے, افسران بالا سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں سخت احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے. ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ بر وقت ادا کی جائیں. ظاہرین کا مزید کہنا تھا اگر حکومت نے مطالبات منظور نہ کیے تو ملازمین کام چھوڑ ہڑتال کے ساتھ ریل کا پہیہ جام کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق شہزاد، نیو نیوز، خانیوال. مظفر آباد آزاد کشمیر میں 31 سال بعد متوقع بلدیاتی انتخابات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، چیف سیکرٹری اور سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ایک دوسرے کو مکتوب بلدیاتی انتخابات کی امید دم توڑنے لگی ہے. مزید جانیں گے اپنے نمائندے سردار ذوالفقار علی سے. بالکل آزاد کشمیر میں 27 نومبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابی جو شیڈول ہے بلدیاتی الیکشن کا وہ دے رکھا ہے اور یہ 31 سال کے بعد الیکشن ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی
जो आज की सूरत हाल है उसमें ये उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, चूँकि वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के जो असातिज़ा हैं वो हड़ताल के ऊपर बैठ के और उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी देने से ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ मकतूब पर मकतूब और हदायत पर हदायत जारी हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी और IG को एक मकतूब लिखा था कि फौरी तौर पर इलेक्शन जो है उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुहैया किए जाएँ, जिसके जवाब में जो मुस्लिम लीग नून है उसने मुतालबा किया था, उसके जो सदर हैं उन्होंने मुतालबा किया था कि वो सिर्फ फ़ौज की निगरानी में और रेंजर्स की निगरानी में इंतखाबात को कबूल करेंगे। और उसके साथ साथ जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपोजिशन है और हुकूमत वो इंतखाबात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से एक पेज के ऊपर मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया है जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने जो वाज़े किया है या जो उन्होंने बताया वो ये क्या कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टोटल जो इस वक्त जो नफरी जो दस्तियाब है वो 8000 के करीब है और 8000 की नफरी से इंतखाब कराना मुमकिन नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि ये इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला कर्क में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस 3 माह से ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। मरीज़ इलाज के लिए ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे खालिद खटक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की डीम में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाहिद जो OT ऑपरेशन थिएटर था वो एनेस्थीसिया डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से तकरीबन 3 माह से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे अस्पताल किराए के मुताबिक यहाँ से तकरीबन माहाना 500 से ज़ायद ऑपरेशन यहाँ हुआ करते हैं और आम आवाम, खसूसन गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की बंदिश की वजह से यहाँ पे डिलीवरी की जो केसेस होते हैं, जो लेबर रूम है उसमें भी ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी बंद है और जनरल सर्जरी के वार्ड भी जो है वो खाली पड़े हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं एनेस्थीसिया डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा और वो उसको मजबूरन प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ता है जहाँ पे उसके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात था उसका प्रमोशन की वजह से ये उसका तबादला हुआ है और तकरीबन 3 माह से ये पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है और यहाँ पे आने वाले मरीजों और खुसूसन ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आर्मी चीफ का तकर्रुर मेरिट पर कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को आगे लेकर चलेगा। फितना खान का मुकाबला करते रहेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सीनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुशावरत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने भी सादिक संजरानी की हिमायत से हाथ खींच लिया। चेयरमैन सीनेट मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म। और पेशावर हाई कोर्ट में मुतनाज़ फिल्म पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त पर समाअत नुमाइश से मुतालिक वजारत इत्तलात, PTA, पेमरा और FIA को नोटिस जारी। फिल्म पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा। आपको बताएं कि काजी अहमद में सैलाब को गुजरे 3 माह गुजर गए मगर मुतासरा इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है जिससे मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे इनायतुल्लाह से। काजी अहमद में 4 माह मुसलसल गुजरने के बावजूद भी जो है मुख्तलिफ देहातों में पानी की निकासी ना हो सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाही गांव अजमल में। नवाही गांव अजमल जो है मुकम्मल ज़ेरे आब है। ये पानी खड़ा हुआ है घरों में। अभी तक इंतजामिया या हुकूमत की तरफ से कोई भी जो है इकदाम नहीं उठाए गए पानी की निकासी के हवाले से। सैलाब मुतासिर का कहना था कि 4 माह मुसलसल गुजरने के बावजूद भी जो है 5 से 6 फुट हमारे घरों में पानी है। हमारे माल, मवेशी, अनाज सब कुछ खत्म हो गया है। जब वोटों का अमल आता है तो UC चेयरमैन और काउंसिल जो है हमारे पास आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी तक तो उन्होंने कोई भी जो है हमारी माली मदद नहीं की गई। इनका मजीद कहना था कि हम वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जो हमारे घरों में अभी तक पानी जमा है वो जल्द में से जल्द पानी की निकासी की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ठट्टा में सैलाब मुतासिर सर्द मौसम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बहाली के कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज से बच्चे बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। तासा गुल की रिपोर्ट। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। मुतासरा इलाकों से ताहाल पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। वबाई अमराज से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं।
मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानब से कोई इकदाम नहीं किए गए और न ही कोई इमदाद फराहम की गई। हम ये अपील करते हैं सिंध गवर्नमेंट वालों को कि भाई हमको ये घर तो तामीर करके दो। गरीब लोग हैं, 1 किलो 2 किलो आटो कमा के दोनों 200-300 रुपये मजदूरी करने वाले हैं हम। परेशानी असांजा बच्चा दर बदर आहिनि, असां इहो ई सरकार ॾिनो आहे खाद पीत जो सामान है, न को घर सपोर्ट है, न को के ॻाल्हि जी सपोर्ट है। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध से इमदाद फराहम करने और बहाली के इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गिल, न्यूज़ ठट्टा। सैलाब मुतासरीन की ज़िंदगी किसी इम्तहान से कम नहीं, हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में खैरपुर में मरकज़ी तंजीम आराइयाँ पाकिस्तान ने साबिर मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से मुतासरीन में कंबल और रज़ाइयाँ तकसीम की हैं। मुज़म्मिल हुसैन की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं, हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। मुतासरीन को सर्द मौसम में मुश्किलात का सामना है। ऐसे में खैरपुर में मरकजी तंजीम आराइयाँ पाकिस्तान ने साबिर मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से मुतासरीन में कंबल और रज़ाइयाँ तकसीम की। बरसात जब से पड़ी है, मरकजी तंजीम आराइयाँ पाकिस्तान की खिदमत का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में साबिर मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट गोजरा से हमें 1000 रज़ाइयाँ जो हैं वो सर्दी की वजह से यहाँ भेजी गई हैं, जो अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जो मुस्तकीन हैं बसात मुतासरीन उनमें बांट रहे हैं। मुतासरीन ने फलाई तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत भी जल्द अज जल्द बहाली के इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ मुज़म्मिल हुसैन, न्यूज़ खैरपुर। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा काश्तकारों को बिला मुआवजा गंदम के बीज फराहम किए जा रहे हैं। काश्तकारों ने हुकूमती कदम को खुशाइंद करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान में ज़राअत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। काश्तकारों ने मुफ्त बीजों की फराहमी के इक़दामात को अहसन करार दिया। ज़मींदारों के लिए बहुत बड़ा अच्छा पैकेज हो गया है। अभी हर ज़मींदारों को 3-3 ये कट्टे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह ये बड़ा हमारे लिए बहुत बेहतरीन ऐसे समझो मदद है। इस बार ज़मींदार अगर कमज़ोर थे लोग लेकिन उसको बेजिए दिया, ये बड़ा अल्लाह का एहसान हुआ है। हम लोग ये शुक्रगुजार हो जाए कि भाई हमारे साथ बड़े बड़े मददें हो रही। कुदरती आफात से निपटने के अदारे PDMA के मुताबिक सैलाब से बलूचिस्तान में 9 लाख एकड़ से ज़ायद अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत मुतासरा इलाकों में ज़राअत की बहाली के लिए काश्तकारों को 2 अरब 20 करोड़ रुपए के बीज फराहम करेगी। शाहनज़र बादीनी, न्यू क्वेटा। अल खिदमत फाउंडेशन लवर्दी के ज़ेर इंतज़ाम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी कैंपस तेमरगरा में फैमिली फन फेयर करवाया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे नवाब बादशाह। अल खिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के ज़ेरे इंतज़ाम अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी कैंपस तीमर गिरा में यतीम बच्चों के लिए फैमिली फन फेयर का इनेकाद। यतीम बच्चों की फैमिलीज, यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ज़हूर जान और अल खिदमत के ज़िलाई सदर हफीजुल्लाह खाकसार ने फीता काट कर फन फेयर का बाकायदा इफ्तिताह किया। फन फेयर में बच्चों के लिए खेलों के मुकाबले, स्टॉल्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब दिलचस्पी ली। फन फेयर के शुरका ने अल खिदमत की इस इकदाम को खूब सराहा। अल खिदमत फाउंडेशन ने आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इससे तो एक तरफ से यतीम बच्चों को हौसला मिलेगा और दूसरी तरफ उनके जो मख्ती सलाहियतों को भी निखार मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा हो। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों में शील्ड्स, ट्रॉफियां और असनाद तकसीम की गईं। बिहाड़ी में महकमा लाइफ स्टॉक मोबाइल वैन के जरिए ज़िला भर के देही इलाकों में मवेशी पाल अफराद और मुख्तलिफ स्कूल के तलबा में लाइफ स्टॉक के हवाले से आगही फराहम की जा रही है। मज़ीद जानेंगे मुनव्वर हुसैन रजाना से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के विजन और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी की हिदायत के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक की मोबाइल वैन जो है वो इस वक्त ज़िला भर के देही इलाकों में जाकर किसानों और ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चे हैं उनको मवेशी पालने और पोल्ट्री के हवाले से वहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है, उनको आगाही फराहम की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल के बच्चों को डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए मुर्गियाँ पाल कर गोश्त वाले जानवर पालने के हवाले से भी आगाह किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जाकिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब की रहनुमाई और विजन के मुताबिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दी गई। उसमें जो देसी मुर्गबानी हमारी उसके बारे में अवेयरनेस दी गई बच्चों को। मकसद इसका ये है कि बच्चों को इसी स्टेज में आके लाइफ स्टॉक के बारे में और डेंगू के बारे में भी को अवेयरनेस दी गई।
जी बिल्कुल, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर का यही कहना है कि इस मोबाइल बस जो है इसके ज़रिए जहां पर मवेशी पालने के हवाले से आगाही फराम की जा रही है, वहीं पर डेंगू से बचाव के लिए भी जो मुख्तलिफ आगाही है वो इन तलबा और जो मवेशी पाल हज़रात हैं उनको दी जा रही है, और ये जो सिलसिला है वो आइंदा भी जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों और उनके वालिदैन को मदऊ किया गया, जहाँ खसूसी तौर पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी नस्ब किए गए। मज़ीद जानेंगे जौहर अमीन चौहान से। जी, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के हवाले से गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में एक खूबसूरत रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी आए हुए हैं और उनके साथ साथ उनके वालिदैन भी आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्कूल की प्रिंसिपल साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो दिन मनाया जा रहा है इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस तरह के दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और मैं समझती हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए कि अगर हम अपने तमाम आलमी दिन, जिस तरह के आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, बच्चों को उनकी अहमियत का पता चले, वालिदैन को उनके बच्चों की अहमियत का पता चले और बच्चे इस तरह के मकामात पर आकर अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। जी, आप लोगों ने सुना, उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो तकरीब मुनक्किद की गई है इंतहाई ज़रूरी है और यहाँ पर बच्चों की ग्रोइंग के लिए ऐसी तकरीबात होनी चाहिए। आज वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है चिल्ड्रन के हवाले से, गाजी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं और लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जौहर आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में अमरूद का फल पक कर तैयार हो गया। इस फल को शहरी बहुत पसंद करते हैं और सेहत के लिए भी मुफीद है। अमरूद को शहरी अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। मज़ीद जानेंगे गुलशेर से। जी, सर्दियों का आगाज़ होते ही अहमदपुर शर्किया में वहद इकलौता अमरूद का एक बाग है जिसकी फसल पक कर तैयार हो गई है और ये फल जो है बहुत अहमदपुर शर्किया में बड़े शौक से खाते हैं और इस फल के बागात के जो मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। साढ़ा 12 एकड़ बाग आ, अलहमदुलिल्लाह हुण जिहड़ा ना पक कर तैयार हो गया है। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। जी, उनका कहना है कि ये जो फल है इसको बहुत पसंद किया जाता है और यहाँ से शहरी अपने प्यारों को बाहरले मुल्क भी भेजते हैं और ये बेहतरीन फल एक पाया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में सर्द मौसम शुरू होते ही ड्राई फ्रूट की दुकानों पर रश लग गया है। शहर में जगह जगह मौसम सरमा की सौगात, खुश्क मेवाजात के ठेले लगे हैं। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इमरान गुराया से। मौसम सर्द हो और ड्राई फ्रूट न खाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सरगोदा के बाजारों में भी ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रश लग गया। ड्राई फ्रूट में सबकी पसंद मूंगफली ऐसी सौगात है जो सस्ती होने के सबब हर किसी की पहुंच में है। ये ड्राई फ्रूट में एक मूंगफली ऐसा फ्रूट था जो कि गरीबों की पहुंच में था, लेकिन इस साल इसके भी जैसे दूसरी महंगाई हुई है, इसके रेट्स भी जो है इब्तदा से ही बहुत ज्यादा हो गए हैं। महंगाई के बावजूद लोग चलगोजे, बादाम और अखरोट भी खरीद रहे हैं, जबकि खट्टी मीठी खुश्क खुबानी और इंजीर की भी मांग है। दुकानों पर रश में इजाफे से दुकानदार भी खुश नजर आते हैं। हर साल की तरह इस मरतबा भी शहरी ड्राई फ्रूट महंगा होने का शिकवा करते नजर आते हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज, सरगोदा। खबरों में अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।